गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦਊਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੱਢਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਪ ਆਫ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨ ਸਿਰਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੋਲਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਲਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਿਰਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ 214.2 ਗ੍ਰਾਮਸ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34.2 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘੋਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਿਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲਸ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, C12H22O11 ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। 342 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਸੋ 34.2 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 342 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ 200 ਜਿਹੜਾ 14.2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਪ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 34.2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੂਗਰ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 18 ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, H2O ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ 16 ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 18 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੋਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲਸ। ਯਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਸ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸੋਲਿਊਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, 1 gram of sugar are dissolved in 500 cm³ of the solution at 300 Kelvin temperature. What will be its osmotic pressure? Very important numerical। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0.083। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 1.7 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 500 cm³ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ = CRT, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, T ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ T ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 300 ਕੈਲਵਿਨ, ਉਹ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਰ ਲੀਟਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 1 ml ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 500 ml ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ 1000 ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ,
नंबर ऑफ मोल्स तुसी शुगर दे बनाओगे, मोल्स बनाने आते हैं ना, 1.71 ग्राम अपने कोल शुगर का वेट है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, वो 345 तुसी पिछले सवाल च भी किया है, उहदे नाल डिवाइड करो, मोल्स बन जाएंगे। मोल्स बटे वॉल्यूम लेना हुंदा, 500 जिहड़ा ml तुहाडे कोल वॉल्यूम आ, तुसी फिर की करोगे उपर गुणा किन्ने नाल करके 1000 नाल करके तुसी इहदी जिहड़ी आ फाइंड आउट कर लओगे। ठीक है, उस तो बाद जदों तुहाडे कोल ये निकल गया बच्चे मिलीलीटर दे विच लै लोगे ना, फिर तुसी बस पाई इज इक्वल टू तुहाडे कोल सोल्यूशन आ जाएगा, उहदे विच भर के तुसी सारी वैल्यू जिहड़ा ऑस्मोटिक प्रैशर कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर ए सैंपल ऑफ रैक्टिफाइड स्पिरिट दे विच कंटेन 95% इथेनॉल ऑफ मास। हुण इदां दी परसेंटेज आ जाए ना, बड़ा ध्यान रखना पैंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ फिर मोल फ्रैक्शन आ गई, मोल फ्रैक्शन 'ਚ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मोल्स बनाने पैणगे सल्यूट ते सॉल्वेंट दे। इथेनॉल ਤੁਹਾਡਾ सल्यूट है राजे, वाटर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ सॉल्वेंट। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 95 ਗ੍ਰਾਮ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ टोटल सोल्यूशन 100 बनाया आ, टोटल सोल्यूशन 100 है जिहदे विच 95 ग्राम इथेनोल है इस वक्त तुहाडे कोल। जे 100 च 95 इथेनोल होगी, पानी 5 ग्राम नहीं रह गया, आपां नूं सारी चीज़ पता लग गई। हुण आपां ने मोल फ्रैक्शन कढनी है इथेनोल ते वाटर दी, पहला इथेनोल दी कढ लो। इथेनोल दा फार्मूला लिखना आना चाहिए C2H5OH, ठीक है ना, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ फिर मोलर मास कैलकुलेट करोगे, ये मेरे हिसाब नाल 46 आ जाएगा। फिर तुसी की करोगे 95 नूं, इथेनॉल 95% है ना, 95 नूं 46 नाल डिवाइड करके मोल्स बन गए इथेनॉल दे। वाटर दे बनाने आ तो फिर 5 ग्राम तुहाडे कोल पानी बचिया, 5/18 करके वाटर दे बन गए। हुण मोल फ्रैक्शन जे इथेनॉल दी कढनी है राजे, फिर मोल्स ऑफ इथेनॉल उपर आएंगे, नीचे इथेनॉल प्लस वाटर दे मोल्स आएंगे। जे तुसी वाटर दी कढनी है, नंबर ऑफ मोल्स वाटर दे उपर आएंगे, इथेनॉल प्लस वाटर की हो जाएंगे नीचे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 10% बाय मास KCl solution in water is 1.06 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पेपर च आया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ मोलैरिटी रजे ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ याद कर लिया करो, जिथे मोलैरिटी आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ मोल्स चाहिए होणगे, नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ वॉल्यूम चाहिए। ਜਦੋਂ मोलैरिटी होवे फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ मोल्स नीचे वेट चाहिए सॉल्वेंट ਦਾ, पर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मोल्स ਉੱਪਰ चाहिए आ KCl ਦੇ जो ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, डिवाइडेड बाय ਸਾਨੂੰ नीचे की चाहिए रजे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जे ਤੁਸੀਂ मिलीलीटर च ਲਓਗੇ फिर ਉੱਪਰ गुणा 1000 भी करोगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10% ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ कि ਆਪਣੇ ਕੋਲ टोटल घोल ਜਿਹੜਾ सोल्यूशन है वो 100 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ग्राम ਜਿਹੜੀ है KCl है, ਇਹਦਾ मतलब ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 100 ਚੋਂ 10 ਗਿਆ ਤੇ 90 ग्राम ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਬਚੇਗਾ। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ दोनों चीज़ां पता लग गई। और एक तुसीं आ नोट करो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ डेंसिटी दिती आ, हुण बाय डेंसिटी दिती हुई है राजे 1.06। हुण डेंसिटी का फार्मूला नहीं भूलना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम की होंदी है राजे डेंसिटी। सो डेंसिटी तो असीं की कैलकुलेट कर सकते हैं, असीं वॉल्यूम, क्योंकि जो मोलैरिटी कढ़नी तो वॉल्यूम की लोड़ पेगी तो वॉल्यूम निकल जाएगा। जो तुसीं मास भरना है ना, वो टोटल सोल्यूशन का भरना है, क्योंकि डेंसिटी सोल्यूशन की है, KCl दी नहीं है। कई बच्चे 10 ग्राम मास भर के उहदा कढ़न लग पैंदे आ। नो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ 100 ਆ, ਉਹ 10 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10 ਤਾਂ KCl ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 100 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 100 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 1.06 ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ KCl ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਤਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ KCl ਦਾ, ਪਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦੇ ਮੋਲਸ ਬਣਨਗੇ। सो गिवन वेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ KCl ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, 38 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 35.5 ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਸੋ ਮੋਲਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 1000 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ਹੁਣ ਰਾਜੇ मोलैलिटी आ गई, 14% solution in sulfuric acid by weight, the density of solution is 1.10 ग्राम पर cc। पर ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, मोलैरिटी ਵੇਲੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ मोलैलिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ weight ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ weight ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ weight ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14% 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ
और बाकी 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਆ, 100 ਚੋਂ 14 ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੱਢੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ 86 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ H2SO4 ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਇੱਥੇ H ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਪਲੱਸ ਸਲਫਰ ਦਾ 32 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ, 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 64 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 98 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 14 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 98 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਲਸ ਲਿਖਿਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਲਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਵੇਟ ਆਪਾਂ 86 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ 1000 ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ये थोड़ा जिहा तुहानूं चेंजिस करनियां पैणगियां एट 25 डिग्री सैल्सीयस एज्यूमिंग दैट इट इज़ कंप्लीटली डिसोसीएटेड। हुण ये ध्यान रखियो, वैसे तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आप फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई = CRT यूज़ कर लांगे, पर यह ध्यान च रखियो जो तुहानूं ये लिखिया आ जाए इट इज़ कंप्लीटली डिसोसीएटेड, इट मीनस ये होएगा कि हुण तुसीं कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नूं डायरैक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं दस्सिया सी जिस केस च एसोसीएशन या डिसोसीएशन हो जाएगी तुहाडी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि कोलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स के उत्ते। अगर कोई चीज़ टुट जाती है तुहाडी गिणती भी नंबर ऑफ आयन्स की वध घट हो जानी है, जिहदे नाल नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए तो यह मतलब कोलीगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जानी है। सो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर सिर्फ तदे ही आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ एसोसीएट जुड़े भी ना तो डिसोसीएट भी ना हो। पर इस क्वेश्चन च कंप्लीट डिसोसीएशन हो गई, कादी हो गई रजे K2SO4। हुण पोटैशियम सल्फेट टुटूगा ना, वो क्लीयर नज़र आऊगा, सेंटर च लाइन लगा के देखो 2 K ने, तुहाडे कोल SO4 इक्को ही है, तो टोटल 3 आयन्स नज़र आ रहे हैं। कित्थे 1 बनना सी, कित्थे 3 टुट 3 च ब्रेकडाउन हो गया, सो आयन्स की गिनती चेंज हो गई। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ = CRT यूज़ करना, ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਵੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ I लगाना ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ यूज़ करना, ਤਾਂ 273 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈਓ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 25 mg ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ, 1000 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ K2SO4 ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। पोटैशियम का 38, कई बार 39 भी हुंदा, तो 39 नूं आपां 2 नाल गुणा कर ली, सल्फर 32 जोड़ लिया, ऑक्सीजन जिहड़ा जोड़ के फिर इहदा मास निकल आया, मोल्स बना लो। फिर उस तरीके तुसीं मोल्स निकल आए, मोल्स तो बाद आपां ने वॉल्यूम ले लेना। वॉल्यूम भी रजे 2 लीटर आ, जे तो आपां लीटर च आ गया फिर 1000 उपर नाल गुणा करन दी लोड़ नहीं हुंदी। जे आपां मिलीलीटर च यूज़ करते हैं ना फिर आपां 1000 नाल उपर गुणा करते हैं, इसलिए बिना 1000 नाल गुणा किते तुहाडा सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इफ इट एक्सर्ट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.45 atm एट 300 कैलविन। देखो मोलर कंसनट्रेशन मतलब C कढ़नी आ गई, अपने को फार्मूला होंदा ना पाई = CRT, हुण तुसीं C निकालनी है, बाकी चीज़ां दित्तियां होईयां। ऑस्मोटिक प्रेशर तुहानूं दे दिता गया है, ठीक है, टैंपरेचर तुहाडे कोल 300 कैलविन आ गया, R दी वैल्यू तुसीं यूज़ कर लैनी, फिर C तुसीं ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तो बाद जे नैक्सट न्यूमेरिकल है, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्वड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। ये भी बड़ा सौखा, क्योंकि मोलैलिटी च आपां नूं वेट ही चाहिए सॉल्वेंट, तो 30 ग्राम सीधा ही नज़र आ गया तुहाडे कोल। बस ये भी ग्लूकोज का फार्मूला पता होवे C6H12O6, क्योंकि ये मोल्स बनाने हैं, मोलैरिटी तो मोलैलिटी च मोल्स बनाने पैणगे। हुण 2.82 ग्राम आपां नूं 2.82 ग्राम जिहड़ा ग्लूकोज दिता आ, ग्लूकोज का मोलर मास 180 निकलेगा। तुसीं 2.82 नूं 180 नाल डिवाइड करके पहले मोल्स तैयार कर लियो, फिर मोल्स नूं डिवाइड करांगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, उहनूं 3 नाल डिवाइड कर दिओ, क्योंकि ग्राम च अपने कोल वाटर का मास, उपर गुणा 1000 आपां फार्मूले च लगाने आ। बस ध्यान च रखना है भी जे किलोग्राम च होवे फिर नहीं लगाने की लोड़, जे ग्राम च है फिर लगा लो। इस तरह जे वॉल्यूम मिलीलीटर च है फिर लगाना पेगा, जे लीटर च फिर जरूरत नहीं हैगी। सो आंसर आ जाएगा राजे। लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द मोलैरिटी
इफ 0.0580 मोल्स ऑफ ए कंपाउंड डिसोसीएशन 200 ml च हुई है सोल्यूशन की, फाइंड द मोलैरिटी। हुण मोलैरिटी च मोल्स बने बनाए आ गए, तुहानूं बनाने नहीं पैने। मोल्स उपर रखो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 200 ml आ गया, गुणा 1000, अपना सिंपल सवाल सॉल्व हो गया। हुण इत्थों ये क्लीयर हो गया जदे रजे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे विच आपां नूं तकरीबन मोलैरिटी, मोलैलिटी ते मोल फ्रैक्शन के नुमैरिकल्स आने के चांसिस बहुत ज़्यादा आ। इसलिए इन्हां नुमैरिकल्स नूं जिहड़ा तुसीं स्ट्रैस दे के हुण तुसीं पता क्या करना, हुण जिद्दां मैं सारे समझाया, हुण तुसीं देख के नहीं करने, हुण तुसीं इन्हां नूं खुद सॉल्व करके अपनी टिक्स लगाओ और फिर मैच कर लियो कि तुसीं सही कर लिया जां नहीं। इस तो बाद रजे मल्टीपल चॉइस थ्योरी के क्वेश्चनस भी होणगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी मैं तुहानूं थोड़े थोड़े दस दिंदी हाँ। हुण मोलैरिटी नूं किद्दां डिफाइन करना, हुण जिहड़े बच्चे नूं मोलैरिटी की डेफिनेशन आती है, तदे मैं कहा सी थ्योरी वास्ते थ्योरी के क्वेश्चनस अगर मल्टीपल अटैम्प्ट करने आ बच्चे आपां नूं थ्योरी पढ़नी पएगी। इसलिए मैं जोर दे रही हाँ कि तुसीं एक बार रीडिंग करो सारे चैप्टर की, ताकि उहदे क्वेश्चनस तुहानूं पता लग जाण। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन की है रजे, नंबर ऑफ मोल्स हुंदे आ, नीचे आपां पर लीटर वॉल्यूम लैंदे आ सोल्यूशन का। सो इत्थों तुहानूं लभ जाएगा, जे तुसीं पर लीटर देखो तो पहली ऑप्शन टिक हो जानी तुहाडी, दूजी दे विच तुहाडे कोल वेट आ गया किलोग्राम च, ये मोलैलिटी बन जानी, तीजे च ग्राम इक्विवेलेंट है, नॉर्मैलिटी है, सो चौथा नन ये नहीं हैगा, सो पहली टिक हो गई। सो इस तरह थोड़ा जिहा पढ़ के तुसीं करना। नैक्सट है जी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हुण कार्बन डाइऑक्साइड है जी गैस आ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, वाटर की है लिक्विड। सो ये तो क्लीयर नजर आ रहा है, गैस इन लिक्विड की एग्जाम्पल बन गई, ठीक है। अगे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन इज नोन एज, हुणे मैं दस्या ग्राम इक्विवेलेंट नाल जो रिलेट करेगी दैट इज़ नॉर्मैलिटी। और एक गल याद रखियो, मोलैरिटी ते नॉर्मैलिटी का संबंध वॉल्यूम नाल होण करके दोनों टैंपरेचर नाल चेंज हो जाणगियां, पर जिहड़ी तुहाडे कोल मोलैलिटी होएगी इट विल नॉट चेंज विद टैंपरेचर। एक फॉर्मैलिटी भी हुंदी है, उस भी वॉल्यूम यूज़ हुंदा, वो भी चेंज हो जाती है। एक होर इंपोर्टेंट गल याद रखियो कि मोलैरिटी का भी यूनिट बन जाता है, मोलैलिटी का भी बनता। एक मोल फ्रैक्शन इदां दी चीज़ है जिहदा कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनलैस है ये, क्योंकि रजे उपर भी मोल थल्ले भी मोल, फिर दोनों मोल मोल ही कट गए तो अपने कोल यूनिट नहीं आएगा। क्लीयर है जी। अगे है वैन द सल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। ट्रेस क्वांटिटी मैं दस्या सी जो बहुत थोड़ा होवे फिर आप मैथड किहड़ा यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। वाई द ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूज एट हायर एटीट्यूड। हुण ऑक्सीजन के सिलेंडर तां ही यूज़ करने पैंदे आ क्योंकि उस उपर जाके एटमोसफेयर प्रैशर घट जाता। एटमोसफेयरिक प्रैशर का मतलब ये होया कि एटमोसफेयर के ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ही घट जाती है, जिस वजह नाल फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर लिजाने पैंदे आ। हैनरी लॉ इज़ यूज्ड फॉर, आ तो बड़ा वधिया क्वेश्चन है, पेपर 2-3 बारी आया। हैनरी लॉ पिछले साल भी आया। एक किहड़ी एग्जाम्पल च यूज़ हो रहा। हुण तुसीं कार्बन डाइऑक्साइड फिल करनी है ਜਿਹੜੀਆਂ कोल्ड ड्रिंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूज़ करना पेगा, पर वो बच्चा आंसर दे सकता जिन्होंने हैनरी लॉ पता आ। हैनरी लॉ ये कहता आ कि जिहड़ा मास ऑफ गैस डिजोल्व होंदा ना, कितनी गैस डिजोल्व होएगी किसी लिक्विड दे विच, इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रैशर। ये प्रैशर नाल संबंधित आ, जिन्ना तुसीं प्रैशर पाओगे ना उन्नी गैस लिक्विड च घुल जाती है। फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स उत्थे भी सानू हैनरी लॉ सी, प्रैशर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के सिलेंडर लैके जाने आ, उत्थे भी ये लॉ यूज़ हो रहा है कि उत्थे ऑस्मोटिक प्रैशर जिहड़ा यानी प्रैशर के नाल गैस का संबंध हैगा, उहदा प्रैशर घट जाता, उहदी वजह के नाल जिहड़ी हैगी ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। थर्ड हैगा स्कूबा डाइविंग। डाइविंग वेले भी यही चीज़ यूज़ होंदी है कि प्रैशर वधन दे नाल, क्योंकि जिहड़ी उन्होंने ना बहुत डूंगी डाइविंग करनी होंदी आ, उत्थे फिर प्रैशर जिहड़ा हुंदा ना ज़्यादा हुंदा, इस वजह दे नाल उहदी उत्थे आपां नूं गैस की सॉल्बिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो ये तिन्ने एग्जाम्पल्स तुहाडियां यूज़ होणगीਆਂ हैनरी लॉ। सो आंसर ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये तुसीं आप करना। हुण मैं एक बार दस जरूर दिंदी हाँ, बच्चे पॉजिटिव का मतलब चीज़ ज़्यादा होना हुंदा। इत्थे ये संबंध रखियो भी एक ग्राफ आ गया अपने कोल पॉजिटिव डेविएशन राउट्स लॉ दा, वेपर प्रैशर नाल रिलेटेड आ। जदों वेपर प्रैशर जिहड़ा हैगा जिन्ना आना चाहिए वो तो ज़्यादा वध जांदा ना, उहनूं कहंदे आ पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रैशर जिन्ना आना चाहिए वो तो घट जाए फिर असीं कहने आ कि ये जिहड़ा वेपर प्रैशर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्योंकि राउट्स लॉ के मुताबिक जो आना चाहिए है उहदे नालों अगर चेंज आती है फिर पॉजिटिव नैगेटिव डेविएशन करके आएगी तुहाडे कोल। उहदा रीजन हुंदा है कि इंट्रैक्शनस होनियां शुरू हो गई, तदे आपां कहने आ कि आइडियल सोल्यूशन कोई नहीं हुंदा, क्योंकि एक सोल्यूट नाल जुड़ सकदा, सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट नाल अटैच हो सकते हैं। यानी हुण आपां दो चीज़ां मान लो रजे मिक्स करते हैं। मान लो मैं इत्थे एग्जाम्पल जिहड़ा आंसर आ वो ले लैनी आ, मीथेनॉल ते एसीटोन आपस में मिक्स करती। हुण तुहानूं पता मीथेनॉल अल्कोहल आ, मैं तुहानूं +1 दे विच भी करवाया सीगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हुंदी है OH ग्रुप दे विच,
क्योंकि ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, हाइड्रोजन इलैक्ट्रोपॉजिटिव, और नाल वाले मॉलीक्यूल्स नूं बहुत अट्रैक्ट करदी है, यानी मीथेनॉल के सारे मॉलीक्यूल एक दूजे नाल जुड़े मिलणगे। इहदा मतलब इंट्रैक्शन च आए हुए आ, पहलां तो इंट्रैक्शन टुटूगी है ना। उस तो बाद जिहड़ी एसीटोन आ उहनूं आपां इहदे विच पाउने आ, जदों असीं एसीटोन मीथेनॉल च पावांगे ना, वो मीथेनॉल के बंधन नूं तोड़ के विच ऐड होएगी, जिहदे करके इंट्रैक्शनस वीक हो जाणगियां। सो पहला चीज़ सख्ती नाल जुड़ी हुई सी, यानी प्योर जिहड़ा है वो मीथेनॉल ते प्योर एसीटोन, ਇਹਦਾ वेपर प्रैशर चैक करो। हुण प्योर मीथेनॉल का वेपर प्रैशर जिहड़ा हैगा ते प्योर इथेनॉल का वेपर प्रैशर घट होऊगा, क्योंकि रजे प्योर पहलां तां प्योर मीथेनॉल ही नहीं टुटदी, इहदे वेपर्स बनने नहीं, क्योंकि मॉलीक्यूल बहुत स्ट्रोंगली जुड़े हुए आ। इहदे वेपर्स बनाने लई बहुत ही आपां नूं टैंपरेचर देना पएगा। लेकिन जदों आपां मीथेनॉल एसीटोन पा दांगे ना एक दूजे दे विच, तां मीथेनॉल दे बॉन्ड्स दी ब्रेकडाउन हो जानी आ, हुण बंधन वीक हो जाणगे, इंट्रैक्शन वीक होगी, हुण वेपर्स बड़े वधिया बनणगे। सो वेपर्स की गिनती वध गई ना, सो इस करके सोल्यूशन किहड़ी शो करेगा पॉजिटिव। अगर इदां होवे भी पहला इंट्रैक्शन है नहीं आपस च, लेकिन जदों असीं मिक्स करते हैं कई बार दोने चीज़ां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल जुड़ जांदियां, फिर वेपर घट जाते हैं। क्लीयर होई मेरी गल। सो वेपर्स की गिनती घटना या वधना इंट्रैक्शनस ते डिपेंड करेगा। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजे, ये क्वेश्चन पक्का आंदा ही है इस टाइप का। हुण बॉइलिंग पॉइंट रजे किहदा ज़्यादा होगा चैक करना पेगा। ਜਦੋਂ भी कदे इदां दा क्वेश्चन आ जाए बॉइलिंग पॉइंट आ जाता या डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता, तुसीं आइंस की गिनती चैक कर लियो बस, क्योंकि एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आइंस से डिपेंड करेगी। हुण जिहदे च नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा होणगे ना, उह कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी। सो हुण आपां चैक कर लैंदे आ। NOH देखो दो ही आइंस बनणगे, एक सोडियम एक OH, ठीक है। NH4 NO3 ये भी दो ही बनणगे, एक NH4 पॉजिटिव बन जूगा, NO3 नैगेटिव बन जूगा। Na2SO4 ये दो Na बनणगे अपने कोल पॉजिटिव, इत्थे दो सोडियम आ गए, एक सल्फेट, टोटल 3 हो गए, और एक ये तो चलो आंसर ही पढ़ता मैं कि NO3 ये एक K हो गया, मतलब सेंटर च लाइन ला लियो तो आइंस की गिनती दस जाएगी। NO3 सिंगल आ मतलब ग्रुप आ, सो ये दो बनणगे, सो जिस 3 बनणगे तो आंसर आएगा। क्लीयर। एज कंपेयर टू 0.1 मोलर ग्लूकोज, सॉरी रजे, एज कंपेयर टू 0.1 मोलर ग्लूकोज एंड the depression in freezing point of 1 molar KNO3 is, अच्छा ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दसना। ਹੁਣ राजे ये भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। ਹੁਣ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा जिथे उत्थे होगी जिते आयंस की गिनती ज़्यादा। ਹੁਣ ग्लूकोज तो टुटदा ही नहीं आयंस विच, शुगर नहीं टुटदी, सो इस करके ये तो इक्को ही आयन इक्को ही गिनती च गिन होगा। KNO3 टुट जूगा, एक K बन जूगी, KNO ये दो आयंस यानी डबल हो जूगी, ये गिनती एक गिन होनी, ये दो आयंस बन जाएंगे। सो तुसीं इहदा आंसर डबल दे सकते हो, ट्वाइस हो जाएगा। वैन द वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर फ्रूट है तो पता ही है ऑसमोसिस नाल पानी एंटर कर जाएगा। सो इदां दे क्वेश्चन तुसीं आप कर लेने। इफ द मोलैलिटी इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रैशन कॉन्सटेंट, पहली गल जिहड़ा कॉन्सटेंट चीज़ है राजे वो तो अनचेंज रहिंदी है, उन्हें तो चेंज ही नहीं होना। तुसीं मोलैलिटी डबल करो या ट्रिपल, वो वैल्यू चेंज नहीं होएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। आइडियल के केस के डेल्टा H भी 0 होंदी, वीक मतलब कोई चेंज ही नहीं आती। नैक्सट हैगा द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू, हुणे आपां नूं पता ही है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जिहड़ी है डिपेंड करती है मोलैलिटी के उत्ते, ये मोलैलिटी के डायरैक्टली प्रोपोर्शन होंदा। आपां करदे हैं ना डेल्टा TB इज डायरैक्टली प्रोपोर्शन टू M, उत्थे आपां मोलैलिटी भरदे हैं। सो ये मोलैलिटी आ गया। फिलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किहड़े लॉ के अकॉर्डिंग आपां हुणे कीता, हैनरीज लॉ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है तुसीं लभ लैनी आ। SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी खुद देखना आ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टैंपरेचर, मैं दसता मोलैलिटी ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। सो जी जिहड़े सिंपल क्वेश्चन आ वो तुसीं खुद ट्राई करने आ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये मैं चैक कर दिंदी आ। हुण इन्हां चों फ्रीजिंग पॉइंट आ गया राजे। हुण देखो तुसीं ध्यान रखो भी फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आऊगा ना उदों ध्यान रखियो भी डिप्रैशन नहीं आया। डिप्रैशन की होंदा, घटना होंदा। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइंस। हुण पहले तो आप नंबर ऑफ आइंस चैक करो कि केस च ज़्यादा बनते हैं। सुक्रोज जिहड़ा है राजे इन्हें भी टुटना नहीं हैगा,
ये भी शुगर का रूप, यूरिया भी नहीं टुटती, ग्लूकोज भी नहीं टुटती, इथेनॉल जी हैगी ये आइंस च ब्रेक कर जाएगी। सो यदा जोड़ा है लोएस्ट फ्री, हुण इत्थे लोएस्ट आया राजे, हाईएस्ट नहीं आया हैगा, क्योंकि लोएस्ट मतलब डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलीगेटिव प्रॉपर्टी, और डिप्रैशन का मतलब घटना, तो घट किहदा होएगा जिहदे विच आइंस की गिनती ज़्यादा होएगी। सो डिप्रैशन का मतलब घाटा चैक करना, एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब आइंस का वाधा चैक करना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिहदे विच आइंस ज़्यादा होणगे ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट होएगा। सो घट ते वध दोनों वर्ड्स दे विच कन्फ्यूज नहीं होना, फ्रीजिंग पॉइंट घटूगा आइंस वधन दे नाल, और बॉइलिंग पॉइंट आइंस वधन नाल वधूगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एलीवेट होंदी है, एक प्रॉपर्टी डिप्रैस हो जाती है। सो बाकी रजे मेरे हिसाब के नाल क्वेश्चन जिहड़े आ सिंपल हैगे आ, जे कोई तुहानूं फिर भी लगा कि तुहानूं नहीं क्लीयर होया, वो आपां जिहड़ा इत्थे डिस्कस कर लांगे। किहड़ी डिमेंशनलैस, देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया ना, इन्हां चों किहड़ी डिमेंशनलैस क्वांटिटी है, मैंने पहले ही कहा सीगा कि ये मोल फ्रैक्शन तुसीं याद रखना। लास्ट हैगा रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिशू सैल्स स्पेस दे विच, ये भी तुसीं याद कर लियो राजे, ਜਿਹੜੇ लोग ज़्यादा ना मतलब साल्टी फूड खाते हैं उन्होंने प्रॉब्लम आती है, उस बीमारी का ना एडीमा हो जाता, उन्होंने विच ना फिर टिशूज़ दे विच पानी की एंट्री जी है ना वो रिटेन ज़्यादा हो जाती है, वो इस ऑसमोसिस का रीजन है ये, इसलिए बीमारी का ना याद कर लियो। सोल्यूशनस तुहाडे होमोजीनियस नूं कहंदे आ, मतलब एक सार बने हुंदा उन्होंने सोल्यूशन गिणदे आपां, जी च कंपोनेंट डोडी नज़र आते हैं वो हैट्रोजीनियस हुंदा, पर सोल्यूशन हमेशा चीज़ पूरी घुली हुई नूं कहंदे आ। ठीक है जी, मैं नीचों हुण उपर नूं पढ़न लग गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन हुण हवा नूं तां आपां कह नहीं सकदे, एरोसोल आ गया, अमलगम दे विच भी अपने कोल मरकरी दा विच पाउने वो लिक्विड स्टेट च हुंदी है, फिर सॉलिड इन सॉलिड नाल तां अलॉयज बनदे आ, जिन्हों तुसीं उप धाता कहने आ, धात च धात मिला दईए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गई। डैश ला स्टेटेड दैट मास ऑफ गैस, ये हैनरीज ला आपां पढ़ ही लिया है। NaCl is added to water while boiling egg to increase in boiling point। सो सोडियम क्लोराइड ना कई बार अंडे उबालन लगे विच पा देता है, इसलिए पा दिता जाता है ताकि ये बॉइलिंग पॉइंट नूं उहदे वधा दिंदा आ। वाइल यूजिंग ये तो पता ही है भी आपां नूं इंजैक्शन देना होवे तां साडे ब्लड दे नाल वाला आपां नूं लिक्विड यूज़ करना चाहिए, वो हुंदा आइसोटोनिक सोल्यूशन, ताकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहे। जे वध घट होया ना फिर अपने सैल्स श्रिंक कर सकते या फुल सकते हैं, तो उस करके आपां नूं आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। सो हुण क्लीयर हो गए सारे क्वेश्चन, आई थिंक हुण आपां कवर कर ही गए हैं ज़्यादा। सो एक आ जिहड़ा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लीयर द स्नो, ये जरूर चेते कर लियो। सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड दोवें वधिया, पर दोवां चों सब तो वधिया कैल्शियम क्लोराइड हैगा आ, उदा तां आपां दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों की है अपने कोल नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हैगे आ, जे असीं बर्फ दे उत्ते इहनूं पाने आ ना, ये जिहड़ा हैगा साडी स्नो दा जिहड़ा फ्रीजिंग पॉइंट हैगा जित्ते वो जमदी उहनूं घटा दिंदे आ, फिर घटाण करके बर्फ उन्ने टैंपरेचर ते नहीं जमदी हैगी जिहड़ा उस वक्त होएगा, वो तो डाउन जाऊगा टैंपरेचर फिर जमूगी, इस करके पिघलना शुरू कर दिंदी है। सो इनू पाउण ते बर्फ का जिहड़ा हैगा ना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुंदा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। सो बाकी क्वेश्चन तो सिंपल हैगे आ, यह तुसीं कर लैने आ। जे कोई प्रॉब्लम लगी तो फिर मैनूं दस दिओ। ओके रजे, हुण ये तुसीं मल्टीपल चॉइस का टैसट जिहड़ा है ना मैनूं करके सेंड करना आ, क्योंकि ये तो आपां एक नंबर वाले तैयार करने ही करने हैगे आ। सो कल तुसीं ये टैसट जिहड़ा हैगा अज तुसीं इहदी प्रैक्टिस कर लो, कल तुसीं इहदा टैसट दे दो, फिर मैं कल तुहानूं 2 नंबर वाले क्वेश्चन सेंड करूँगी। ऑल